Assalamu alaikum, dear student. Today our topic is nested if statement. But before going to this topic, I want to explain the difference between else if and switch statement, and it is important according to the paper point of view. In the previous Zoom class, we have studied about the else if statement, switch statement. We have performed their programming given on the textbook program 6 and 7, vowel word, and similarly we have performed other programs related to the switch statement. Now I will briefly explain the difference between else if and switch statement. Else if statement depend on the condition given inside if statement. Else if में if statement का ये condition दी जाती है जो, whereas in switch statement it is executed, the execution of switch statement is executed decided by the user. यूजर स्विच स्टेटमेंट में जो भी केस देगा, केस ए बी सी या 1 2 3 वही केस एग्जीक्यूट होगा, जबकि एल्स इफ में कंडीशन चेक की जाती है. अगर कंडीशन ट्रू है तो वो इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर वो एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी. सेकंड, एल्स इफ स्टेटमेंट यूज मल्टीपल डिसीजन स्टेटमेंट फॉर मल्टीपल चॉइसेस. एल्स इफ स्टेटमेंट मल्टीपल डिसीजन यूज होता है मल्टीपल चॉइसेस के लिए, एंड स्विच स्टेटमेंट यूज सिंगल एक्सप्रेशन फॉर मल्टीपल चॉइसेस. Third, else statements test for equality as well as logical expression. Else statement में generally अगर हम condition देते हैं उसमें expression भी दे सकते हैं, लेकिन switch statement में हम सिर्फ equality के लिए statement test होती है. Switch statement test only for equality. Similarly, else if statement, it depends on the condition given inside if statement. Whereas switch statement, which statement is executed, is decided by the user. Else statement use multiple decision statement for multiple choices, and switch statement use single expression for multiple choices. Switch statement में user enter करता है, switch statement में हम case use करते हैं, break statement use करते हैं, user enter करता है case 1, case 2, case 3, जो case match करता है वही case execute होता है. जबकि else statement में condition check होती है और जो condition true हो जाए वही condition run होती है. इसी तरह else statement test for equality as well as logical expression. else statement में equality और expression, logical expression test होता है, whereas in switch statement test only for equality. Now we will come to the nested if statement. What is nested if statement? What is nested if statement? Nested if statement में ये कि statement within the statement is known as the nested if statement, and if statement inside another statement is known as nested if statement. ये if statement को एक और if statement के अंदर अगर हम यूज करें तो ये nested if statement कहलाता है, and this is important. Let's see the program. Include iostream.h, include corner.h. मेन प्रोग्राम में इंटीजर मार्क्स से इंटर द मार्क्स इन मार्क्स. अब जो ये मार्क्स की डेटा टाइप इंटीजर है, आप इस स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है, इट्स डेटा टाइप इज इंटीजर. यूजर विल इंटर द मार्क्स हियर. अब देखें इधर नेस्टेड कंडीशंस लगी हैं. इफ स्टेटमेंट के अंदर ये स्टेटमेंट है, इसके अंदर एक और स्टेटमेंट लगी है. किस तरह? अगर मार्क्स, इफ मार्क्स ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 100, अगर मार्क्स जो यूजर ने इंटर किए वो 0 और 100 के इन बिटवीन, यानी 0 से ग्रेटर हैं या 0 के इक्वल है या 100 से लेस हैं, यानी एक रेंज बता दी कि 0 से 100 तक यूजर ने मार्क्स इंटर करने. अगर इसे हट के इंटर करेगा, अगर 0 से कम करेगा, नेगेटिव करेगा या 100 से ज्यादा करेगा, तो इस इफ स्टेटमेंट के साथ जो आपको नजर आ रही है स्क्रीन के ऊपर बोल्ड, ये एल स्टेटमेंट है जिसमें लिखा आ जाएगा सी आउट इनवैलिड डाटा. बट अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है, यूजर 0 और 100 के दरमियान मार्क्स इंटर करता है, देन अगेन चेक दी कंडीशन कि यूजर ने जो मार्क्स इंटर किए मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 33. अगर यूजर ने जो मार्क्स इंटर किए 33 से ग्रेटर हैं, तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इस इफ के साथ ये जो सी आउट स्टेटमेंट है यू आर पास, ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा. और अगर ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये जो एल्स स्टेटमेंट है, अगर यूजर 0 100 के दरमियान मार्क्स इंटर करता है लेकिन 33 से ग्रेटर नहीं है, 33 से लेस है, तो मैसेज आ जाएगा यू आर फेल्ड. ठीक है. और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट एल्स स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड और मैसेज आ जाएगा इनवैलिड.
data gets it. So now let's see the output. अब हम इसकी आउटपुट देखते हैं. आउटपुट में क्या है, फर्स्ट देखें, इंटर दी मार्क्स 24. अब ये जो 24 आपको जो इंटीजर वैल्यू नजर आ रही है, ये अगर आप प्रोग्राम में आए तो ये 24, ये सीन मार्क्स जो इंटीजर वेरिएबल है जिसकी डेटा इंटीजर है मार्क्स, ये 24 मार्क्स को असाइन हो जाएगा मार्क्स वेरिएबल मेमोरी सेल में जाकर 24 स्टोर हो जाएगा. अब यहाँ कंडीशन चेक हो रही है क्योंकि मार्क्स जो है, अब आप देखें 24 जो है वो 0 और 100 के इन बिटवीन है, 0 से ग्रेटर, और यहाँ पे ये एंड ऑपरेटर यूज हो रहा है. एंड ऑपरेटर मींस कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तब ये एग्जीक्यूट करेगा. अब मार्क्स जो है वो 24 0 से भी ग्रेटर है और 100 से भी लेस है, तो दोनों कंडीशन ट्रू है, तो नो, तो अब कंट्रोल जो है इस कंडीशन ट्रू है, अब इफ स्टेटमेंट की उसमें स्टेटमेंट में जाएगा. नो इफ ग्रेटर देन इक्वल टू 33 यू आर पास्ट. अब ये फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो रही है तो यू आर पास्ट एग्जीक्यूट, ये इसकी सीआउट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी क्योंकि मार्क्स 24 है, ग्रेटर देन 33 नहीं है, तो लेस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और मैसेज आ जाएगा यू आर फेल्ड. आप ये देख सकते हैं कि इसका मैसेज है यू आर फेल्ड. यहाँ पे मैसेज आ जाएगा यू आर फेल्ड. ओके जी. नो लेट्स सी इंटर द मार्क्स. अब यूजर एंटर कर दिया 113. अब 113 100 से भी ग्रेटर, और यहाँ पे हमने ऑलरेडी कंडीशन लगाई है कि अगर मार्क्स 0 से ग्रेटर और एंड ऑपरेटर और 100 से लेस हो देन एग्जीक्यूट, एल्स सीआउट इनवैलिड डाटा. अब क्योंकि 113 इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, इस कंडीशन को फॉल्स कर रहा है, तो इसलिए एल्स एग्जीक्यूट होगा इनवैलिड डाटा, और सेकंड ये आपको रिजल्ट नजर आ रहा है इनवैलिड डाटा शो हो जाएगा. थर्ड में देखिए इंटर दी मार्क्स 64. अब यूजर ने 64 मार्क्स एंटर किए है. अब 64 मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन 0 और लेस देन 100 भी है और ग्रेटर देन 33 भी, इसलिए सी आउट यू आर पास्ट, ये कंडीशन जो है सी आउट यू आर पास्ट, ये स्टेटमेंट जो है वो सी आउट की एग्जीक्यूट होगी और मैसेज आ जाएगा यू आर पास्ट. दिस इज द एग्जांपल ऑफ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट. आई एक्सप्लेन अगेन दैट नेस्टेड इफ मीन इफ विद इन इफ. जिस तरह विंडोज के अंदर विंडोज ओपन होती हैं उनको हम नेस्टेड विंडोज कहते हैं, इसी तरह इफ स्टेटमेंट के अंदर, इफ कंडीशन के अंदर, इफ एल्स के अंदर एक और इफ एल्स कंडीशन लगी है तो उसे हम नेस्टेड इफ कहते हैं. और now we come to the program. This is very important program and assignment for you according to the board point of view, and it is the lab activities, page 94 on textbook. Lab activities means that you have to perform this program on your laptop or computer. Question part 7 है, page 94 on textbook. Samir works in a firm as a programmer and is getting a monthly pay. Write a program to calculate his net pay. अब यूजर उसकी इंटर करेगा और फार्मूला क्या गिवन है, नेट पे इक्वल टू बेसिक पे प्लस हाउस रेंट. अगर बेसिक पे लेस देन 30,000 है तो हाउस रेंट उसके ऊपर जो ऐड होगा वो 30% ऑफ बेसिक पे. सिमिलरली इफ बेसिक पे इज ग्रेटर देन 30,000, 30,000 से लेके 50,000 तक अगर उसकी बेसिक पे है तो उसके ऊपर जो हाउस रेंट लगेगा वो 35% ऑफ बेसिक पे लगेगा. सिमिलरली अगर बेसिक पे ग्रेटर देन 50,000 है तो जो उसके ऊपर जो हाउस रेंट लगेगा वो 40% ऑफ बेसिक पे उसका हाउस रेंट लगेगा, और ये हाउस रेंट और बेसिक पे दोनों ऐड होके ये नेट पे इसकी कैलकुलेट होगी. तो हमने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है कि जिसमें हम जो भी इसमें बेसिक पे एंटर करें तो हमें इन फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग वो हमें रिजल्ट दे दे. दिस इज योर असाइनमेंट and you can take help from my YouTube video. I have already explained this program in detail on my YouTube, but before this I want that each student must write this program on C++ on your laptop or PCs, and you should try to develop your logic so that you can successfully attempt the paper of programming. So you have to develop your logic that how you can give this formula and how you can calculate the basic pay plus house rent and net pay. The formula is given on the screen, but just you have to convert this program first into algorithm, into sequence of program, first input formula, and then at the end you have to calculate the net pay. So this is today, this is our topic was the nested if statement. And now the question answer session start. You can ask question
regarding today topic,